Hi, so in this video we basically want to discuss a few more keywords similar to the way we had public, private and other things, right? So we have some more keywords which are going to define how our variables, how our data members are going to behave. So let's see. Let's start with something. Let's change something in the student class itself. Okay. So this was our student class, what we have made so far. We have a name, we have a roll number. Roll number is private for now. We have two constructors, and we have given option to set the roll number and get the roll number as well, and we have a print function. Okay, so a lot of times what's going to happen is you would have data members that you don't want to change. I mean, you want to have some value in them initially, but you don't want them to change afterwards. For example, roll number. Let's say I want a student to get the roll number as soon as it is created, but that roll number should not change after that. Once a student is created with some particular roll number, that roll number is not going to change for that object after that. So you want your data member to be final. It's final. The value should not change. And the keyword to do that is also final. So basically what we will do is we will make our data member to be final. Okay. That has created couple of errors at multiple places, right? Like so couple of errors actually, just two errors in our file here. We'll see what those errors are. So when I'm saying something is final, you cannot change it once it has been initialized. एक बार initialize कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते. So वो एक बार initialize कहाँ हो सकता है? देखो एक बार initialize या तो यहीं पर साथ ही साथ हो सकता है. तो मैंने create किया, मैंने assign कर दिया, right? Now just think about it. Every student that you are going to create will have a roll number 100 because बनेगा roll number यहीं पे assign हो जाएगा, उसके बाद तुम change ही नहीं कर सकते उस roll number को. जब भी तुम roll number change करने की कोशिश करोगे error आ जाएगा. So any data member which is final cannot be changed once it has been initialized. One way to do it, one way to initialize is at this moment. साथ के साथ हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर, ठीक है. रोल नंबर को बनाया, जहाँ पर हमने डिक्लेयर किया, साथ के साथ हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया. बट दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेस. सो दिस इज फाइनल data members can be initialized as soon as they are declared. This is one option that we have. The other option is, so if you will look, if you will think about constructors a little more. So constructors are actually when you call a constructor, an object is created. Now if you call the constructor again, it will create a new object. You cannot call constructor on an existing object, है ना. जब भी हम ये new student और student बनाने के लिए हमें जो भी argument चाहिए हम देंगे, हमारा एक नया object create हो जाता है. So एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होता है, दैट्स इट. दोबारा कॉल नहीं कर सकते. कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट बन गया. अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकता. दैट मीन्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ओनली वंस, दैट टू एब्सोल्यूट एट द बिगिनिंग टू कंस्ट्रक्ट दैट ऑब्जेक्ट. बिकॉज एक ऑब्जेक्ट पे कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल हो सकता है, तुम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी फाइनल वेरिएबल्स को, फाइनल डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हो. बिकॉज हमें पता है एक ही बार कॉल होगा तो वहीं पे इनिशियलाइज कर देते. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोल नंबर को मैं सेट कर रहा हूँ तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, तुम कर लो इसकी वैल्यू सेट. यहाँ पे क्या कंप्लेन कर रहा है? यहाँ पे ये कंप्लेन कर रहा है कि तुम्हारा जो फाइनल मेंबर है रोल नंबर, उसको इनिशियलाइज नहीं किया. दैट मीन्स जस्ट थिंक अबाउट इट. इफ यू आर यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट अ स्टूडेंट, अगर मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करके स्टूडेंट क्रिएट किया, इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके मैं स्टूडेंट क्रिएट कर रहा हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी. बिकॉज अगर हमने इसको यूज करके स्टूडेंट को क्रिएट किया, रोल नंबर सेट ही नहीं हुआ, एंड उसके बाद कभी तुम रोल नंबर चेंज ही नहीं कर पाओगे. The only two places where you can set
a final data member is as soon as you are declaring it or inside a constructor, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकते. So अगर तुमने कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज नहीं किया तो वो रोल नंबर 0 ही रहेगा, हमेशा कभी चेंज नहीं होगा. सो एक्चुअली जावा फोर्सेस अस कि कंस्ट्रक्टर के अंदर तो तुम्हें सेट करना ही पड़ेगा. इट विल एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि हम ये वाला कंस्ट्रक्टर ना ही दें, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर रोल नंबर तो लेंगे ही लेंगे, या फिर हमें यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम रोल नंबर को कैसे इनिशियलाइज करने वाले हैं. Is this a good solution? I don't think it's a good solution because every student created using this constructor will have the same roll number which is 100. मुझे लगता है हमें इस कंस्ट्रक्टर को हटा देना चाहिए. We should force anybody creating a student to give us the roll number as well. हमें रोल नंबर मिलेगा, हम रोल नंबर को सेट कर देंगे. I'll just repeat myself one more time. कोई चीज अगर फाइनल है तो उसको दो जगह पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, या तो जहां बना रहे हैं साथ के साथ वहीं पे कर दें, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर. अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर करना है तो हर कंस्ट्रक्टर को उसको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा. दैट्स समथिंग दैट इज फोर्स्ड बाय जावा. ओके, सो यहां पर हमने अपना एक कंस्ट्रक्टर हटा दिया बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस टू क्रिएट अ स्टूडेंट विदाउट अ रोल नंबर. सो वी आर सेइंग स्टूडेंट बनाना है, रोल नंबर तो देना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय फाइनल डेटा मेंबर्स. यहां पे एरर क्यों आ रहा है? Because once the student is created, it already has been assigned a roll number. Why would you want to change the roll number later on? हम कंस्ट्रक्टर के अलावा किसी भी फंक्शन के अंदर रोल नंबर को चेंज नहीं कर पाएंगे अब. सो सेट रोल नंबर इज समथिंग दैट वी शुड नॉट अलाउ, सो वी शुड कमेंट इट आउट. रोल नंबर चेंज नहीं हुआ, सो सेट नहीं कर सकते हम रोल नंबर को. ओके, ग्रेट. सो दिस इज व्हाट वी हैव एज फाइनल डेटा मेंबर्स. Now the next thing that I want to discuss with you is another keyword which is called this. Okay, so before we get to this, I just want to make a small change. Student को दो input चाहिए constructor के अंदर. क्या चाहिए दो input? Name and roll number. Variable को ढंग से नाम रखना चाहिए ना. So ये n क्यों रखा है? इसको name ही करते हैं and इसको roll number ही करते हैं. भाई स्टूडेंट क्रिएट करना है तो नेम दो और रोल नंबर दो. तो यहाँ पे एन की जगह नेम हो जाएगा और यहाँ पे आर एन की जगह रोल नंबर हो जाएगा. सो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम नेम और रोल नंबर, हम कह रहे हैं नाम और रोल नंबर है ना. आर और हमने नाम पहले रखा होता एन और आर एन, वो क्यों रख रहे हैं हम? वी शुड नेम इट नेम एंड रोल नंबर. व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? Now the problem is, this is very ambiguous. Which name are you talking about? You have two names now. One is this, which is the local variable that you have, and the other one is the data member that you have with every student. इस फंक्शन के अंदर अब जब मैं नेम बोलूंगा तो वो लोकल वेरिएबल की बात करेगा, वो डेटा मेंबर की बात नहीं करेगा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस डेटा मेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नेम. Similarly, roll number. When you're saying roll number, we are talking about this roll number, local variable, and not the data member. So I need a way to access. I need a way to access data member which has same name as a local variable. मुझे एक तरीका चाहिए ये करने का. आई वांट टू एक्सेस अ डेटा मेंबर व्हिच हैज सेम नेम एज अ लोकल वेरिएबल. ठीक है, अभी देखते हैं कैसे करेंगे. जब हम एक स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, तो बस S1 था, वो स्टूडेंट का रेफरेंस था. मुझे इस स्टूडेंट का नाम चाहिए तो हम कैसे एक्सेस करते थे? S1 डॉट नेम ये लिखते थे, तो इस स्टूडेंट का नेम हम एक्सेस कर पाते थे. सो समहाउ if I can get the reference to the student, I think हम उसको यूज करके डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे. That's exactly what this does. So basically हम क्या चाहते हैं? लोकल वेरिएबल की वैल्यू डेटा मेंबर में डाल दो.
सो ये जो राइट हैंड साइड पे है ये लोकल वेरिएबल होना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये हमारा डेटा मेंबर होना चाहिए. सो व्हाट यू कैन से इज दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर. सो अब जो ये दिस डॉट रोल नंबर है, ये दिस क्या है, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जिसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अभी. सिमिलरली किसी भी फंक्शन के अंदर अगर तुम्हें वो ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर कॉल हुई है तो हम दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं. जस्ट टू बी श्योर दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये हमने कंस्ट्रक्टर गायब कर दिया है, रोल नंबर देना ही पड़ेगा. सो लेट्स गिव अ रोल नंबर दे देते हैं हम यहाँ पे. एक काम करते हैं, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है दिस प्रिंट करके देखते हैं दिस है क्या, दिस को प्रिंट करके देखते हैं. ठीक है, दिस को प्रिंट करके देखते हैं. सो व्हेन यू क्रिएटेड दिस स्टूडेंट, सो हमारा ये क्रिएट हो गया. दिस को जब हमने प्रिंट करके देखा तो एक स्टूडेंट का रेफरेंस प्रिंट हो रहा है. जब हमने ये दूसरा स्टूडेंट क्रिएट किया तो फिर से एक और प्रिंट हो रहा है एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टूडेंट. अगेन जस्ट टू बी श्योर एक काम करते हैं, S1 प्रिंट करें. व्हाट इज S1? S1 इज द रेफरेंस टू दिस स्टूडेंट, जो ये स्टूडेंट इस कंस्ट्रक्टर से बना है. ऐसे ही हम S2 को प्रिंट करके देखते हैं. सो जब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम दिस को प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम रेफरेंस प्रिंट करेंगे. ये हम दिस प्रिंट करेंगे विद इन द कंस्ट्रक्टर एंड फिर हम रेफरेंस प्रिंट करेंगे, होपफुली सेम आएंगे. सो दिस इज सेम एज S1. जब सेकंड के लिए कॉल हुआ तो जो दिस की वैल्यू थी वो सेम थी S2 से. सो बेसिकली वी हैव अ वे टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इनसाइड व्हेन यू आर इनसाइड एनी फंक्शन. वहां से हम उसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड. ओके, ग्रेट. सो इसको कमेंट आउट कर देते हैं. लेट्स गेट रिड ऑफ दिस. ये नहीं चाहिए हमें, इनको हटा देते हैं. सो हमने अपनी क्लास के अंदर रोल नंबर को प्राइवेट कर लिया है, प्राइवेट तो था ही, फाइनल कर लिया है. एंड हम दिस को यूज करके डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं व्हेन यू हैव अनदर लोकल वेरिएबल व्हिच इज ऑफ द सेम नेम. ओके, ग्रेट. So the third thing that I want to change in this whole thing is I want to have another data member. I want to create another data member called num students. Num students मैं create करना चाहता हूँ. What is num students? I want to maintain मेरी student class के कितने objects create हो चुके हैं. पहला student create होगा तो num students की value 1 होगी, दूसरा create होगा तो num students की value 2 होगी. अगर 10 क्रिएट हो चुके हैं तो नम स्टूडेंट्स की वैल्यू 10 होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम रोल नंबर एंड नेम. जब एक स्टूडेंट हम क्रिएट करते हैं तो उसका एक रोल नंबर होता है, दूसरा क्रिएट होता है, तीसरा क्रिएट होता है, तो उनका अपना अपना अलग अलग रोल नंबर होता है. राइट, दिस गाय हैज इट्स ओन रोल नंबर, अगेन डिफरेंट रोल नंबर, सो दे हैव देयर ओन रोल नंबर. इस स्टूडेंट का खुद का रोल नंबर है. बट इफ यू टॉक अबाउट नम स्टूडेंट्स, वंस 3 स्टूडेंट्स हैव बीन क्रिएटेड, नम स्टूडेंट्स की वैल्यू तो 3 है. मैं स्टूडेंट 1 से पूछूं, स्टूडेंट 2 से पूछूं, स्टूडेंट 3 से पूछूं, किसी से भी पूछूं, कितने स्टूडेंट बन चुके हैं? 3 ही बने. आई थिंक इट विल मेक सेंस फॉर अस टू हैव ओनली 1 इंटीजर num students instead of creating 1 copy for each. I don't think it makes sense that we create 1 copy for each. ये नहीं होना चाहिए, ये I think नहीं होना चाहिए. We should not have 3 num students. We should just have 1 num students which is shared by everyone. क्योंकि तुम सोचो दोबारा से, देखो num students क्या है, अभी तक कितने स्टूडेंट्स क्रिएट हो चुके हैं. अगर मेरे पास 3 स्टूडेंट है, मेरे पास एक स्टूडेंट है अंकुश, एक स्टूडेंट है मनीषा. अगर मैं अंकुश को पूछता हूँ अरे कितने स्टूडेंट्स क्रिएट हो चुके हैं, the answer should be same as when I ask Manisha कितने स्टूडेंट्स क्रिएट हो चुके हैं. So they don't need to have their own num students value.
एक num स्टूडेंट्स होना चाहिए जो सबके सब उसी को देखे, उसी को शेयर करे. When you want only one data that should be shared by everybody, we call it static data. ठीक है? So let's quickly create this num students. अगर हम इतना ही लिख देंगे तो ये हर एक के लिए अपना अपना बनेगा. Every student will have its own copy of num students, but हम चाहते हैं नहीं, static है ये, सब शेयर करेंगे. So ये ऐसा बन जाएगा. कहाँ पे अपडेट करना चाहिए इसको? What do you want? Every time a new object is created, you want to increase num students. Every time a new object is created. Object कैसे create होता है? Constructor कॉल करके. जब भी कोई object create होगा तो एक बार constructor कॉल होगा. So I think the best place to increase num students is this. Let's do num students plus plus here. So मेरे number of students increase हो जाएंगे 1 से. ठीक है? So when you have created 2 students, you can just print out num students here. When you want to access a static data member, हम उसको किसी भी स्टूडेंट के थ्रू एक्सेस कर लें, वैल्यू सेम आएगी. S1 के थ्रू एक्सेस करो चाहे S2 के थ्रू एक्सेस करो, we will get the same value. Because ऐसा क्यों हो रहा है? Because S1 and S2 अपना अपना num students नहीं है, they just are referring to the same value that is stored somewhere. So एक ही है num students. S1 का है ही नहीं num students. पूरी क्लास का एक ही डेटा है num students. Okay? Actually, a much better way of accessing num students will be, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता ना, पूरी क्लास का है ना, तो तुम क्लास के थ्रू num students एक्सेस कर सकते हो. दैट्स अ मच बेटर वे ऑफ एक्सेसिंग दिस वैल्यू. बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. इसके अंदर जब हम ऐसे S1 डॉट num student लगते हैं तो लगता है कि यार स्टूडेंट 1 का num students, नहीं, स्टूडेंट 1 का नहीं है, सबका एक ही है. सो दैट वेज क्लास के थ्रू हमें एक्सेस करना चाहिए. क्या रोल नंबर ऐसे एक्सेस करना चाहिए क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट. रोल नंबर, चलो नेम को देखते हैं. डज इट मेक सेंस टू से स्टूडेंट का नाम प्रिंट कर दो, स्टूडेंट डॉट नेम? नो, राइट? नेम तो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का होगा. सो इट डज नॉट मेक सेंस टू आस्क द स्टूडेंट क्लास की नेम बताओ. नेम विल बी फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट. हर स्टूडेंट का अपना अपना नाम है. नम स्टूडेंट्स एक ही है, सबका एक ही है, अलग अलग नहीं है. सो स्टैटिक डेटा मेंबर्स को हम क्लास के नाम के साथ एक्सेस करेंगे. नॉन स्टैटिक को हम क्लास के थ्रू नहीं कर पाएंगे, हमें एक एक स्टूडेंट का अपना अपना ही करना पड़ेगा. ओके, सो ऐसे एक्सेस नहीं करेंगे. टू एक्सेस नम स्टूडेंट्स वी विल गो थ्रू द क्लास. क्या था नम स्टूडेंट्स? इट्स बेसिकली अभी तक कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं. हमने क्या रखा हुआ है इसको? इज इट प्राइवेट? नो, इट्स नॉट प्राइवेट, इट्स नॉट पब्लिक, इट्स नॉट प्राइवेट, इट्स डिफॉल्ट. व्हाट इज डिफॉल्ट? पैकेज में विजिबल होगा. अच्छा, स्टूडेंट यूज सेम पैकेज में है तो मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूं. अगर मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूं तो मैं ये कर सकता हूं, I can just change its value. I don't think that's a very good way. मैंने तो 2 ही स्टूडेंट बनाए थे तो इसने तो वैल्यू 10 कर दी. ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. I don't think we should allow anybody to change this value. ये तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही चेंज होनी चाहिए और कहीं चेंज नहीं होनी चाहिए. तो एक काम करते हैं, इसको प्राइवेट कर लेते हैं कि कोई और ना कर पाए, हम ही करें. प्राइवेट हो गया, ठीक है. सो हमने इसको उठा के प्राइवेट कर दिया. नाउ बिकॉज दिस इज प्राइवेट यू कैन नॉट चेंज इट. दैट्स ग्रेट. द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट इवन एक्सेस इट. तो कुछ नहीं होता, एक्सेस करने के लिए एक गेटर दे देते हैं, गेट फंक्शन दे देते हैं. सो पब्लिक इंट गेट num students and we will return num students from here.
the way we had static and non-static data members, similarly we have static functions and non-static functions. Static function वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते. मैं S1 पे कॉल करूं या S2 पे कॉल करूं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. स्टैटिक फंक्शन वो होते हैं. अगर मुझे नाम चाहिए, गेट नेम फंक्शन बनाना है, तो स्टूडेंट 1 का अलग है, स्टूडेंट 2 का अलग है, नॉन स्टैटिक फंक्शन. गेट नम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 1 से पूछो चाहे स्टूडेंट 2 से पूछो, सेम ही आएगा, स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करता. दैट्स अ स्टैटिक फंक्शन. सो वी शुड मेक दिस फंक्शन स्टैटिक. Once you have a static function, you can actually call it on the class and get your answer. हम चाहें तो हम इसको स्टूडेंट के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं. That's not a very good syntax. ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, बट हम कर सकते हैं. हमें डायरेक्टली क्लास के ऊपर कॉल करना चाहिए. Okay? So we should make this function static. So I hope you guys have a decent idea now how to create a class. But whenever you are creating a class, there are few things that you need to think. इस क्लास में क्या क्या प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, क्या क्या फंक्शनैलिटी डालें, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज पब्लिक होंगी, कौन सी प्राइवेट होंगी, कौन सी डिफॉल्ट होंगी, क्या कोई डेटा मेंबर फाइनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज स्टैटिक होंगी, क्या प्रॉपर्टीज नॉन स्टैटिक होंगी, क्या फंक्शन स्टैटिक होंगे, क्या फंक्शंस नॉन स्टैटिक होंगे. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर हमें कौन कौन से देने हैं. कोई बंदा अगर हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता है, इफ somebody wants to create an object of our class, what all data do we need? उसको हमें क्या डेटा देना होगा जिसको यूज करके हम अपना ऑब्जेक्ट बना के दे पाएंगे. Okay? Great. So in the next few videos we will actually create few interesting classes जिससे मुझे लगता है कि काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी of whatever we have learned so far. Thank you.